Hello everyone, this is Anushka Rathore. Here I am representing our club Humans of Galgotias, which is famous for podcasting in Galgotias University. So today we have with Shubhanshu Shekhar Shukla sir with us, who is TEDx speaker, LinkedIn Top Voice BD, a VP Business Growth, Education Technology and co-founder of Drishti NGO. Welcome sir. Thank you. So firstly I would like to start with the line जो मुझे लगता है आपके दिल के बहुत करीब है. My mother is an inspiration for millions. Do you like to say something over this, because I know this is very emotional for all of us? Thank you so much first of all for inviting me up. ये जो लाइन आपने बोली ना, my mother is an inspiration for millions, I think ये millions नहीं बोलूँगा मैं तो billions बोलूँगा, because the work that my mother is doing at the age of 55, 56, the passions that she carries for getting that thing done, I think मेरे को आज 30 years के एज में भी नहीं है वो passion, और वो मैं लाना चाहता हूँ. And the purpose that she is trying to solve, right? So I'll briefly talk about her. So my father suffered through cancer in the year 2018. Unfortunately, he expired in 2020 during COVID, but because of cancer. Post that, my mother, we had some financial issues, but my mother thought of taking that step to make sure that everything goes well. My brother was in my only younger brother was in the college, and his fees was very high right at that time. So my mother took up a step and she started her own homely style meals. Today when we are speaking, on a monthly basis, she is delivering more than 20,000 orders in a month without any external support, without any external partnership, but it's all through word of mouth. I think the purpose that the purpose is very clear. She wants to provide healthy, hygienic and homely style meals to everyone who is willing to make sure that for them health is a priority above anything. And because she saw the problem that I personally faced when I came to Noida and when my brother was here for the training and coaching. I think there is so much I can speak about that, but yeah, due to limitation of the time, I will be just here, take a pause. जैसा कि आपने बोला आपकी मम्मा मिलियंस नहीं बिलियंस के लिए इंस्पायरेशन है. Seriously, I like this. And my second question is related to your childhood. जैसा कि हम सब बच्चे होते हैं तो कोई ना कोई शरारत ऐसी करते हैं जो हमारे लिए ज़िंदगी भर के लिए मेमोरी बन जाती है. तो आपकी कौन सी ऐसी शरारत थी जो आपके दिमाग में अभी भी है और आपको हंसा देती है? So I think मैं शायद 9-10 साल का था और घर में न्यूज़पेपर आते थे, और मतलब पता नहीं मेरे को क्या दिमाग में लगा, मैंने वो न्यूज़पेपर का इकट्ठा किया. और अगर आज भी आप अपने घरों में देखेंगे तो जो 2001-2002 के अराउंड जो लोगों के घर में बेड होते थे वो लकड़ी के होते थे. अब चेंज होता गया ट्रेंड, और हमेशा ना बीच में गैप होता था बिकॉज वहाँ पे लोग सामान रखते थे बहुत चीज़ें. सो मैंने ना क्या किया कि वो पूरा कागज़ का इकट्ठा किया और मैं जाके उसमें आग लगा दी, और वो बेड के जस्ट नीचे लकड़ी का बेड, और मैंने आग लगा दी. आई थिंक मतलब वो क्या हो सकता था मुझे नहीं पता, बट जो हुआ वो मतलब मैंने क्यों किया ये भी मुझे नहीं पता, बट हाँ ये मतलब शायद मैं हमेशा याद रखता हूँ चीज़. Okay. Now would I like to ask you about your journey to becoming a TEDx speaker. आई थिंक मैं जर्नी नहीं बोलूँगा इसे, क्योंकि TEDx एक पड़ाव होगा. मैं BIT मेसरा 2011-15 का पास आउट हूँ. मतलब 2011 में मैं गया था और 2015 में मैंने पास आउट किया. मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वहाँ पढ़ाई करी. जब हमने वहाँ पे NGO स्टार्ट किया था दृष्टि करके, जो कि आज झारखंड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली उस पर्पस को सॉल्व कर रहा है जिस पर्पस से हमने काम स्टार्ट किया था. सो हमारे ये कहीं भी नहीं था कि मुझे TEDx स्पीकर बनना है या हमें इंडिया की बेस्ट मीडिया कंपनी कवर करे. पर्पस सिंपल था कि हम जो कर रहे हैं ना यार वो लोगों को पता चले, सो दैट एक तो अच्छे लोग और इंस्पायर हों ताकि वो जगह जगह पे वो चीज़ें कर पाए, और दूसरा ये कि शायद वो सुन के वो हमारे कामों
काम को, हमारे अचीवमेंट्स को, हमारे वो है एफर्ट्स हैं, या हमारे साथ जो चैलेंजेस थे इनिशियली, वो सुन के वो अपनी लाइफ में भी रेप्लिकेट कर पाएँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ना कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कहीं ना कहीं कॉमन होते हैं। तो शायद भगवान का वो आशीर्वाद था कि TEDx भगवान ने पहुंचाया। बट हाँ, TEDx पहुंचना मेरा एम नहीं था। मेरा एम सिंपल है कि मैं आज भी और शायद अगले जब तक मेरा थॉट्स है, जब तक मैं हूँ, या जब तक हमारा NGO है, जो कि मैं चाहता हूँ कि बहुत लंबा रहे हमेशा, हमारा थॉट सिंपल है कि हम जिस गांव को अडॉप्ट करते हैं उसमें हम जो काम कर रहे हैं हम उसको कितना अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं और एक्चुअल इम्पैक्ट हम क्या ला सकते हैं। और साथ साथ जो मेरे वॉलेंटियर्स हैं वो कितना अच्छा अपने करियर को बना सकते हैं। क्योंकि अब आप सोचो ना कि जब आप कॉलेज में होते हो आपके पास समय होता है कोई भी नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने का, उसमें फ़ेल हो सकते हो तो फेल होने का भी। और मैं मानता हूँ कि लाइफ में ना फ़ेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फेल होते हो ना तो आप 2-3 चीज़ें करते हो। पहला, आप नए तरीके ढूंढते हो। दूसरा, आपको हमेशा ये रहता है कि अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या मैं नया प्रयास करने की कोशिश करूँगा। और तीसरा, जब आप फेल होते हो तब आपके दिमाग में एक चीज़ आती है, सेल्फ डाउट कई बार, और आपको वो जो विन करने का होता है ना थॉट, वो आपको लाइफ में हर मोमेंट, हर सेकंड, आपको कॉर्पोरेट में या आप अपने स्टार्टअप करो, आप प्रॉफिट करो, नॉट फॉर प्रॉफिट करो, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। आप वहाँ पे ये चीज़ें सीखते हो। तो मैं अपने वॉलंटियर्स को भी हमेशा ही बोलता हूँ, और जब हम बात कर रहे हैं 400 से ज़्यादा वॉलंटियर्स मेरे झारखंड में काम करते हैं। इस पूरे फैमिली में हम सब एक साथ हैं। पिछले 11 साल में हर वॉलंटियर्स का अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को या तो जॉब में बहुत फ़ायदा हुआ, या फिर उन्होंने IIMs में पढ़ाई करी, या कोई सिविल सर्विसेज में गया। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, TEDx ना कभी, मैंने वही फिर से बोलूँगा, कभी भी एक डेस्टिनेशन नहीं था कि TEDx पे हमें जाना है। क्या होता है, कई बार आप जब अच्छा काम करते हो ना तो भगवान और समाज ना आपके लिए कुछ अच्छी वैल्यूएबल प्लेसेस देते हैं। और TEDx एक अच्छा प्लेटफॉर्म है 100%। मतलब हर इंसान अपने जीवन में चाहता है कि TEDx पे ज़रूर जाए, और मैं उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी वहाँ पहुँचा दिया। बट ये मुझे नहीं पहुँचाया, ये उन्होंने दृष्टि थॉट को पहुँचाया, ये उन्होंने इस NGO के लोगों को, उस NGO के थॉट्स को, और जो पिछले 11 साल में हर वॉलंटियर ने जो एनर्जी लगाई, जो मेरी टीम ने एनर्जी लगाई, आई थिंक ये उसका नतीजा है। तो ये भले मैं गया, ये मैं शुभांशु नहीं था, वो वहाँ पे दृष्टि को वहाँ पे पहुँचाया था। सो और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, बेसिकली हमारा उनके लिए ना थॉट बहुत सिंपल है। मेरा थॉट ये है कि जो भी वॉलंटियर हमारे साथ काम करे ना, वो आज काम कर रहा है, वो पहले काम किया होता। मेरा थॉट हमेशा सिंपल है, मेरे को-फाउंडर का भी थॉट बहुत क्लियर है। हम वो बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे वॉलंटियर जब 4 साल हमारे साथ रहा कॉलेज में, या पढ़ाई करा, या वो जो भी कोर्स में रहा, 2 साल का, 3 साल का, उस ड्यूरेशन में ना उस वॉलंटियर को दृष्टि के प्लेटफॉर्म से कितना कुछ सीखने को मिलेगा, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया फेस कि वो एक फैमिली के लिए या एक गांव में जो परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उससे कुछ उनका एक अफेक्शन होता है, वो एक सोशल कॉज होता है। और मैं मानता हूँ ये ना पेरेंट्स की और उनके फैमिली के अपने वैल्यूज़ होते हैं, जिस कारण से लोग ये सोशल कॉज में काम कर पाते हैं। बट वहाँ पे रह के वो अपने करियर में कैसे उन लर्निंग्स को यूज़ कर पाएंगे, आई थिंक ये मेरा रोल है। और वहाँ पे मैं और मेरे को-फाउंडर का थॉट है कि हम दृष्टि के प्लेटफॉर्म से कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, वॉलंटियर्स को इम्प्रूव कर पाएँ, उनकी स्किल्स पे, उनके लाइफ स्किल्स पे, बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स पे, टीम मैनेजमेंट स्किल्स पे, आई थिंक एग्जीक्यूशन पे। क्योंकि वॉलंटियर, मेरा हर वॉलंटियर एक फर्स्ट ईयर वॉलंटियर होता है, फिर उसको एडवांस होता है, और उसके बाद वो मेंटर होता है, फिर कोई चैप्टर लीडर बनता है, राइट। सो आई थिंक वो लीडरशिप भी सीखते हैं। सो यहाँ तक मेरा यही थॉट है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कामयाब इंसान का तजुर्बा कामयाबी की राह पर चलने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसकी राय ले। तो आप हम सारे गलगोटियाज़ के स्टूडेंट को क्या राय देना चाहेंगे जिससे हम अपने फ्यूचर में बहुत अच्छे गोल्स अचीव कर पाएँ? मेरा मतलब मैं नहीं मानता कि मैं वो आपको बता सकता कि क्या हर किसी के लाइफ में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अभी मैं भी उस स्टेज पे शायद लाइफ के सक्सेस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ।
बट जहाँ तक भी पहुँचा हूँ मैं आपको उसमें एक चीज़ बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स की जो वैल्यूज़ है ना, मतलब मुझे किसी ने बोला था कि जब भी कोई भी डिसीज़न लाइफ में लो, चाहे वो आप अपने करियर से लो, चाहे वो डेली लाइफ में लो, हमेशा ना अपना पूरा नाम पढ़ना। जब आप अपना पूरा नाम पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि आपके जो नाम के आगे सरनेम है ना, ये सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली को, आपके जो फोर फादर्स थे ना, उनके एफर्ट, मतलब उनका नाम आपसे जुड़ा हुआ है। सो आप आज जो अच्छा करोगे या जो बुरा करोगे, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना उनके नाम, उनके वैल्यूज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। सो आई थिंक नंबर 1 जो मैंने आपको बोला कि अपने पेरेंटल वैल्यूज़ के आप हमेशा स्टिक रहो। नंबर 2, आप जो काम कर रहे हो ना, करते रहो। कई बार ऐसा होगा ना, आपको लगेगा कि यार मैं तो इतनी जल्दी इसमें, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैंने अपने NGO स्टार्ट किया तो मेरे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त बोलूँगा, शुभचिंतक बोलूँगा, या बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे जगह जगह पे ना टोक के मुझे चीज़ें सही करी। उन्होंने मुझे, कई लोगों ने, अच्छे लोगों ने मुझे बोला कि यार ये नहीं चल पाएगा। जब मैं आज पलट के देखता हूँ कि मैं 11 साल से बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के कर रहा हूँ, आई थिंक जब मैं कर सकता हूँ तो सबको ही कर सकता है। तीसरा थॉट मेरा है कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करो जो आपको हमेशा खुश रखती हो। अगर आपको लगता है एक हॉबी, तो एक हॉबी पकड़ के रखिए। मतलब बहुत जगह लोग पढ़ते हैं भी है, राइट? आपने जैसे बोला ना कि एक सफल इंसान, तो मैंने बहुत सारे सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ी हैं। लोग हमेशा 3-4 चीज़ें करते हैं। कोई हॉबी अच्छी रखता है, कोई गेम अच्छा खेलता है। तो आप मतलब आप एज ए स्टूडेंट है ना, आप एक्सरसाइज, जॉगिंग, बहुत चीज़ें, बिकॉज अभी जो करंट लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल पे फोकस करिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को ना अपने कॉलेज में रहते रहते आप अपने जिस स्टैंडर्ड पे हो उस स्टैंडर्ड से इम्प्रूव करने के लिए उसको फोकस करो। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत 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 आगे पहुंचाती है। आई थिंक मेरा इतना ही है, बोलने को बहुत चीज़ें हैं बट ये चीज़ें ज़रूरी मैं बोलूँगा। ओके, कैन यू शेयर अबाउट योर बिगेस्ट चैलेंज यू फेस इन योर करियर which took much of your time to get resolved? आई थिंक मैं जब एक एडटेक कंपनी में था 2015 से 2021 के दौरान, तो 2018 में मैंने एक नया प्रोजेक्ट लिया जो कि मुझे लगा था कि शायद ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। या तो मैं इस कंपनी के बाहर हो जाऊंगा, या मैं अगर अच्छा कर लूँगा तो शायद इस कंपनी में बहुत ऊपर चला जाऊँगा। और वो एक स्टेप मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था, बट मैंने वहाँ पे मैंने जो अपने NGO से सीखा, जो मैंने अपने NGO के लोगों के साथ सीखा, आई थिंक वो और जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि कोई भी स्टेप पे ना आपको, एक तो मेरी बहुत अच्छी आदत है, मैं हर चीज़ को ना पेन पेपर पे लिखता हूँ। अगर मेरे को कोई भी चीज़ पता चलती है ना, मैं सबसे पहले उसको लिखता हूँ, उसको ब्रेक डाउन करता हूँ उस प्रॉब्लम को कि ये अगर मुझे अचीव करना है तो बैक कैलकुलेशन करता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या कैसे करना होगा। उस स्टेप पे जाने के बाद ना, हर माइन्यूट स्टेप पे जाने के बाद मैं रियलाइज़ करता हूँ इस स्टेप को एकम्प्लिश करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, राइट? तो आई थिंक वो अगर आप करते हो तो वो आपको हेल्प करता है। और किसी भी बड़ी प्रॉब्लम्स को, किसी भी बड़े चैलेंज को आप लोगे तो वो जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे होगे, अगर आप अच्छा करते हो तो आई थिंक वो रिवॉर्डिंग भी उतना ही होता है। और आपके लिए जो करियर में आपको एक तरीके से बोलूँगा कैटलिस्ट, और अगर आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कैटलिस्ट एक होता है जो किसी भी चीज़ को ना फास्ट पेस कर देता है। तो आप जब हाई रिस्क या हाई पोटेंशियल बिजनेस में फोकस करते हो और उसको अच्छा कर देते हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो कंपनी फोकस प्रोजेक्ट में जब आप रहें तो आप ज़रूर उस पर ऐसे काम करें जो आपको आगे ले जा सकते हैं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज what's your future goal about Drishti NGO and how Galgotia University can contribute for NGOs? देखिए, मैंने दृष्टि NGO का क्या फ्यूचर प्लान है, मैं उस पर ये बोलूँगा कि हमारे लिए ये कि हमने झारखंड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर पाएँ। सो हम दृष्टि का फुल फॉर्म मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, डायरेक्टिंग रूरल इंडिया टुवर्ड्स सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। हमारा थॉट सिंपल है कि अगले फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं ना, हम उसको और कितना इम्पैक्टफुल कर सकते हैं। मैं उसमें बहुत बड़ा ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं इंडिया में जाना चाहता, मैं झारखंड में ही रहना चाहता। और जब तक शायद हम NGO को रन करेंगे बहुत सक्सेसफुली, जितने दिन तक हम और साल तक और कर पाएंगे, आई थिंक मेरा इम्पैक्ट सिर्फ झारखंड पे है। ओके सर। और गलगोटिया कैसे हेल्प कर सकता है NGOs को या फिर हम दृष्टि में? आई थिंक गलगोटिया में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे परिवारों से आते हैं,
अच्छे परिवारों का मतलब हमेशा फाइनेंशियली नहीं होता, मैं हमेशा ये मानता हूँ। अच्छे परिवारों का मतलब होता है कि माँ बाप के द्वारा दी गई हुई आपको बेसिक वैल्यूज़, कि आपको झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं करना है। आई थिंक ये दुनिया में सबसे बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। और तो वो बच्चे ऑलरेडी ना, जिनके माँ बाप ने उनको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, आई थिंक वो लोग तो वैसे ही समाज के लिए कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, तो वो लोग भी ऐसी चीज़ें ज़रूर करें। अगर आप अपने एनजीओ खुद बना सकते हैं तो प्लीज़ बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते तो कुछ एनजीओज़ हैं जो वॉलंटियर्स के लिए हमेशा सर्च करते हैं। वो कई बार होता है आपको ग्राउंड वर्क में, कभी कभार आपको बैक एंड वर्क में, जैसे सोशल मीडिया हैंडल हुआ, वॉलंटियर्स मैनेजमेंट। आई थिंक ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो माई लास्ट क्वेश्चन इज़, आप हमारे कैंपस में पहली बार आए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ क्या लगी हमारी यूनिवर्सिटी की? मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में ये बोलूँगा कि हाँ, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में सभी कोई जानता है, राइट। जो भी पढ़ाई करने का सोचता है 10th 12th के बाद सारी, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में जानता है। मैं गलगोटिया सर से कभी मिला नहीं, बट ध्रुव गलगोटिया सर से मैं 2 बार मिला हूँ। मतलब जिस थॉट प्रोसेस और लीडरशिप पे वो इस कैंपस को ले जा रहा है, आई थिंक वो इस कैंपस को बहुत आगे ले जाएगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़, बट बिकॉज जिस तरीके की पार्टनरशिप्स आपकी यूनिवर्सिटी के साथ हैं, मैं कई सारे फैकल्टीज़ को भी बारे में भी सुनता रहता हूँ, काफ़ी रिसर्च में काम करते हैं वो लोग। तो आई थिंक ऐसे लोगों को जब आप साथ में रखते हो तो यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है। प्लस जो आपके यहाँ बच्चे आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, डेडिकेटेड बच्चे हैं। आई थिंक कैंपस का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और कैंपस के बहुत सारे सक्सेसफुल बच्चे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि आपके यहाँ से कोई एक 2015 पास आउट स्टूडेंट हैं जिनका भी यूपीएससी में हुआ है, कोई लेडी है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ एक यूनिवर्सिटी कर पा रहा है तो मतलब बहुत अच्छा है उसके लिए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। यू आर वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू सर।